हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। क्या अनुवाद है? हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो इस श्लोक के ऊपर जो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है पेरिस का, उसको हम अभी साथ में सुनेंगे। अंग्रेजी भाषा में है तो मैं बीच बीच में हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। हरे कृष्णा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम् अभयम्। So who does not want abhayam? Abhayam means fearlessness. Everyone wants. Because by material nature we have got four positions. One position is always fear. What will happen next? Even the big man, President Nixon, he also feared what will happen. Because so many charges have been brought against him. Although he is on a very exalted position, President of USA, but he also always feared. This is material. Can anyone say that he is not fearful? Is it possible? Then what to speak of us? As we require to eat something, this is material existence, eating, and then after eating, rest, sleeping, then after rest, sex indulgence. Similarly, fearful. So here it is, the यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि कौन अभय, कौन जो है कष्टों से मुक्त नहीं होना चाहता। हाँ, भय से मुक्त कौन नहीं होना चाहता, अभय में कौन नहीं रहना चाहता। और फिर हमारी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब हम बद्ध अवस्था में हैं तो हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें कर रहे हैं। तो उसमें से जैसे कि खाने के बाद हम सोते हैं और सोने के बाद फिर हम मैथुन में संलग्न होते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी रक्षा भी करना चाहते हैं। हम भय से मुक्त रहना चाहते हैं सदैव। लेकिन यूएसए का प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट निक्सन, वो भी जो है हर समय भय से भरा हुआ है। तो कौन कह सकता है कि वो भय से मुक्त है? इच्छताम् अकुतो भयम्. Though one who desires to be free from all miseries or fear, or them, those who are accustomed to this fearfulness and then do not make any arrangements how to get out of this fearfulness, they are not human beings. Human being is always takes precaution how to save oneself. Although it is natural, everyone is fearful, but at the same time, it is the effort of the human being to see
that he may be saved from the cause of your. That's what he said. Ichatam kaput, ichatam abhayam. Abhayam means no. If anyone wants no more to be fearful, then for him the prescribed duty is mentioned here that Tasma, therefore, Bharata, who the descendant of Maharaj Bharata. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो समस्त कष्टों से या भय से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, वो इस श्लोक में वर्णन की गई है। तो वो क्या है, वो बता रहे हैं किसको, भारत को, यानी कि महाराज भरत के जो वंश में आए हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान भगवत गीता में भारत कहते हैं, क्योंकि वो भरत महाराज के डिसेंडेंट हैं, उनकी परंपरा में आ रहे हैं, उनके कुल में आ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज भी उसी कुल में ही हैं, तो इसलिए परीक्षित महाराज को भी भारत कह करके संबोधित किया गया। Parikshit Maharaj belonged to the dynasty of King Bharat. King Bharat, from whose name the Bharatvarsha, the word Bharatvarsha comes. This planet is called Bharatvarsha. This planet, earthly planet, is called Bharatvarsha because it was ruled over by the king Bharat. Gradually, the original Vedic culture lost Aryan family. You French people, you are also Aryan. But the culture is lost now. So this Krishna consciousness movement is actually reviving the original Aryan culture. Bharat. We are all inhabitants of Bharatvarsha. But as we lost our culture, it became divided. Now it is divided into so many countries. This is India, this is France, this is Germany, this is this. Formerly, the whole planet was known as Bharat. One culture, Vedic culture, one flag. Now they have increased hundreds and thousands of flags. So actually, if you want United Nations, unity, then you must take this culture, Krishna consciousness, again to become Bharat. That will save the situation. यही श्रील प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वे महाराज भरत की जो परंपरा है, कुल है, उससे संबंध रखते हैं जी। वो भरत जिनके नाम पर इस जो पृथ्वी का नाम जो है वो भारतवर्ष पड़ा है। तो ये जो है वैदिक कल्चर में जो है ये पूरा जो अर्थ है वो भारत के नाम से जाना जाता था। और हर जो परिवार है वो आर्य परिवार था, पूरा समाज जो है वो आर्य समाज था। लेकिन धीरे धीरे हम जो है कल्चर को खोते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को छोड़ दिए हैं। इसीलिए बहुत सारे देशों में जो ये भारत है अलग अलग नामों से बट गया है। बहुत सारे हजारों अब झंडे बन गए हैं सबके अलग अलग, लेकिन वैदिक कल्चर में केवल एक ही झंडा था। तो इसीलिए ये जो कृष्ण भावनामृत है, यदि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये जो है उस कल्चर को फिर से रिवाइव करने के लिए, उस कल्चर को पुनः जागृत करने के लिए है। और उससे क्या होगा, ये पूरा विश्व फिर से भारत बन सकता है, पूरा विश्व एक हो सकता है। This one culture means politically one flag, religiously one God, Krishna. And to understand Krishna, one scripture, Bhagavad Gita.
and one word simply to satisfy Krishna. So this is oneness. If you want at least to become free from all fearful conditions, then you should always memorize or remember whom? Sarvatma. Sarvatma means one who is the living force of everything. He is called Sarva. There is living force. I have got living force, you have got living force, everyone. But where from the living force is coming? From Krishna. Bijaham sarvabhutana. Sarvatma. Krishna is the origin of the living force. He is the supreme living force. Mamayivamsa jiva. This is all stated in Bhagavad Gita. All these living entities, they are my part and parcel. It's like a man having many sons, he can claim that they are all my sons. Similarly, Krishna can claim that all living entities, they are my sons. That is stated in the Bhagavad Gita. Sarva Jyonishu Kaunteya Sambhavanti Murtaya Tasang Mahajjani Brahma Aham Bijapada Aham. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक कल्चर की बात कर रहे हैं जो कि वैदिक कल्चर है, जिसको अगर राजनीतिक रूप से कहा जाए तो एक झंडा, और अगर आध्यात्मिक रूप से कहा जाए, धर्म के रूप में कहा जाए तो एक भगवान जो कि कृष्ण है, और कृष्ण को समझने के लिए एक शास्त्र जो कि भगवत गीता है, और करने के लिए एक कार्य है, केवल एक कार्य है, वो क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। तो इस प्रकार से एकता लाई जा सकती है। और अगर हम जो है इस फियरफुल कंडीशन, इस जो भय की स्थिति से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको याद करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए? सर्वात्मा, जो सभी जीवों की आत्मा है, जो सभी जीवों के अंदर जीवन का स्रोत है, उसको याद करना चाहिए। और वो कौन है? उसके लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता से रेफरेंस दिया 7.10, बीजो अहम सर्वभूतानाम। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है, और उसको भगवान कृष्ण भगवत गीता में वर्णन कर रहे हैं कि मैं समस्त जो जीव हैं, समस्त भूतानाम, उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, बीज हूँ। हाँ, बीजो हम सर्वभूतानाम। और उसी प्रकार से ममय वांशो जीवभूता, कि सारे जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो सबके बीज प्रदाता पिता हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है वही सभी जीवों की आत्मा है एक प्रकार से। I am the living father of all living entities. Of all means Sarva Jonishu, in different forms, in different species of life. सर्व योनिषु, सभी योनियों में। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण केवल मनुष्यों के पिता हैं, नहीं, सभी योनियों के, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों के बीज प्रदाता पिता जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। This outward dress is different. Somebody has become ant and somebody has become elephant, or bigger than that. Whale fish. Another fish there is trimming of. That perhaps we have not seen. Whale fish, some of them have seen. It is just as big as a big house. And still there are fishes which is called trimingal. Trimingal means they swallow up this whale fish just like you swallow from a small nut. They are called trimingal. So there are so many varieties of life. We do not know, but we know from the Shastra.
Shastra written. Therefore, we should consult Vedic literature to have full knowledge. Jalajanam Lakhani. In the water, there are 900,000 species. Now, who can deny it? If you deny, then I shall tell you, then go and count. But we can get the full knowledge from the Shastra. This is called Vedic knowledge. Everything is complete. हाँ जी। तो हो सकता है अलग अलग योनियों में हमारी जो बाहरी पहनावा है, यानी जो शरीर है, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का शरीर चींटी का हो सकता है, किसी का हाथी का हो सकता है, किसी का व्हेल मछली का हो सकता है, और किसी का तिमिंगल मछली का हो सकता है। तो इस प्रकार से वो बहुत छोटा शरीर भी हो सकता है, बहुत बड़ा शरीर भी हो सकता है, लेकिन अंदर में आत्मा एक ही है, और वो उसके बीज प्रदाता पिता भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तिमिंगल मछली के बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी बड़ी होती है। हमने कभी हो सकता है शायद देखी भी ना हो। प्रभुपाद जी इस प्रकार से बता रहे हैं कि वेल फिश जो है वो एक घर जितनी बड़ी होती है, और जो तिमिंगल मछली है वो उसको एक छोटे से दाने के तरह उसको निगल जाती है, एक छोटे से दाने की तरह उसको खा जाती है। तो कितनी बड़ी होगी तिमिंगल मछली। तो इस प्रकार से जो हमारा वैदिक शास्त्र है वो ज्ञान से पूर्ण है, उनमें पूर्ण ज्ञान दिया गया है। जैसे बताया जलजा नवलक्षाणी, कि 9 लाख तरह के जीव जो हैं वो जल में रहते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कौन इसको मना कर सकता है, कौन इसको नकार सकता है। और अगर कोई मना करे कि नहीं 9 लाख तरह के नहीं है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं उसको कहूँगा कि जाओ और गिन के दिखाओ कि 9 लाख नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हमको जो पूर्ण ज्ञान है वो शास्त्रों से प्राप्त होता है। तद्विज्ञानार्थम साधुमेव अभिगच्छति समिपादि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ. So you learn from the Vedic literature every important. And all the Vedic literature is summarized in this Srimad Bhagavatam. Nigama kalpataram dalitam phalamidam. Nigama is Vedic literature. Vedic literature, it is compared with desert tree. Every word used in the Vedic literature is peculiar to the ordinary man. Now, desert tree, there are no experience. But there is a tree which is called desert. Kalpato. What is the business of the desert? The desert tree means whatever you desire, you get from that tree. There is a tree. That desire tree is there in Krishna's Rupa. Chintamani prakara sadhumasu kalpa vrikha. There is also in the spiritual world, there are trees. But each tree is a desert. We have no experience what is desert. You can get anything from that tree. That is called desert. So these Vedas is considered as the desert tree. Means any kind of knowledge you want, it is complete there perfectly. Any kind. Either spiritual or material. Any department of knowledge, and that is called desert. All kinds of knowledge you can achieve from the Vedic. There is. तो इसीलिए हमारे जो शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वो पूर्ण है, और इसीलिए हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। और वो सारे के सारे वैदिक शास्त्र जो हैं उनका सार श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलमिदम। निगम मतलब वैदिक शास्त्र जो हैं उनको कल्पतरु से कंपेयर किया गया है। कल्पतरु, कल्प वृक्ष का क्या अर्थ है कि ऐसे वृक्ष जिनसे जो इच्छा की जाए, जो कल्पना की जाए, उसको वे पूर्ण कर देते हैं। तो हमारा इस संसार में ऐसे कोई वृक्ष का अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसे वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं, और उनसे जो भी इच्छा की जाती है, चाहे वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा, वो उसको पूरी कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, डिजायर ट्री कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसीलिए हम कोई भी जो ज्ञान है वो हम वैदिक जो शास्त्र हैं
उनसे ले सकते हैं। वैदिक शास्त्रों से हम जो भी ज्ञान चाहते हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान, वो हम वैदिक शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनको, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनको कल्पतरु से कंपेयर किया गया, उनको कल्पतरु कहा गया है। धनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्योतिर्वेद, and all kinds. Veda means knowledge. So, for military art, if you want to consult Vedic literature, you get complete information. Perfect. Similarly, Jyotirveda. Jyoti means the luminaries in the sky, the stars. You can get. We're trying to go to the moon planet, wasting our time and energy. But if you consult Vedas, you get full information. Sun planet or any other planet. There are millions and millions of trillions of planets. You can get all. Brahma-loka, up to the topmost planet. Jyotirveda, that is called Jyotirveda. You don't know Veda. Ayurveda. Ayu means duration of life. And nobody wants to be diseased. That means medical science. That is also fully there. तो जो हमारे वेद हैं उसमें हर प्रकार का ज्ञान है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, जैसे कि धनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्योतिर्वेद। तो इस प्रकार से हर जो नॉलेज है वो वेदों में वर्णन है। जैसे कि ज्योतिर्वेद, ज्योतिर्वेद का अर्थ है आकाश में जो तारे हैं उनके बारे में सारा ज्ञान ज्योतिर्वेद के अंदर है। तो हम चांद पर जाने का, चांद को जानने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत समय, बहुत एफर्ट, बहुत सारा धन जो है बर्बाद कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों से पढ़ लें, शास्त्रों को जान लें, तो उसमें चांद के बारे में, सूरज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है पहले से। और इस प्रकार से ऐसे हजारों हजारों, लाखों लाखों प्लैनेट्स हैं, जैसे कि ब्रह्मलोक है। इस प्रकार से अनेक लोकों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसको कि ज्योतिर्वेद कहा जाता है। और इसी प्रकार से धनुर्वेद है, आयुर्वेद है। आयु का अर्थ है जीवन। जीवन का मतलब है कि कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, तो इसलिए आयु कैसे बढ़ेगी, यानी कि मेडिकल साइंस के बारे में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। So, this is the prescription given by Srimad Bhagavatam. If you want to become without any fear, because the material life means we are all full of fear. Therefore, Krishna, the Supreme Father of everyone, of all living entities, in all forms, Sarvatma, he says in the Bhagavad Gita that I am the seed-giving father of all these living. Just like father impregnates the mother by giving the seed. Similarly, this material world, material nature is this body is also material. Similarly, this huge material cosmic manifestation is supposed to be the mother. And the father is God or Krishna who impregnates this seed of the living entity. And therefore, when there is creation, they have come out as children of this material world. Just like a woman is pregnant and the child comes out. Similarly, this material world is impregnated by the seed-giving father. तो ये सारा जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यदि हम जो है भय से मुक्त होना चाहते हैं तो कैसे होंगे, क्योंकि ये जो भौतिक जीवन है इसका अर्थ है भय से भरा हुआ है। और जो भगवान कृष्ण हैं वे जो है परम पिता हैं सभी जीवों के, सर्व आत्मा, सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं। जिस प्रकार से एक पिता माँ के गर्भ में बीज डालता है
तो बच्चा पैदा होता है। उसी प्रकार से जैसा हमारा शरीर जो है भौतिक है, उसी प्रकार से पूरा जगत भौतिक जगत है जो कि माँ की तरह है। और जब भगवान इसमें जो है बीज डालते हैं तो फिर जो है संतति होती है और इस प्रकार से पूरा क्रिएशन बनता है। So that is a different article from this matter. Otherwise, why a woman does not become pregnant automatically? Why? Can anyone answer? Why the seed-giving father is necessary? Let woman produce children automatically. No, that is not possible. Therefore, for producing all these living entities in different forms of life, the seed-giving father is required, and that is God. Is there any bad logic? There is confirmation in the Shastra. Krishna says, Aham Vijapadapita, I am the seed-giving father. And is it possible to produce life without the father? Is it possible? Then why these rascal scientists say, now we shall produce life? How you can do it? It's not possible. This is rascal. Because we are living entities, therefore in the Christian world, the Supreme Lord God is accepted as the Supreme Father. Oh, Father, give us our daily bread. It is very good accepting the Supreme Lord, Supreme Father. Everyone must accept that is human life. That is human knowledge. That is common sense knowledge that if I am produced by my Father, so many living entities where from they have come from the Supreme Father. Sarva is Sarva. Shrutavva Kirtitavvasya. जी, तो हम जो हैं वो इस जो पदार्थ है उससे अलग है, क्योंकि नहीं तो क्यों एक स्त्री स्वतः जो है प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो क्यों ऐसा संभव नहीं है कि स्त्री जो है वो स्वयं से बच्चे उत्पन्न कर सके, उसको एक पिता की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान जो हैं के बिना, भगवान के इंटरफेरेंस के बिना जो ये भौतिक जो प्रकृति है वह उत्पन्न नहीं कर सकती है। लेकिन जो कुछ मूर्ख जो वैज्ञानिक है वे बोलते हैं कि हम जीवन को बना देंगे। वैसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है, ये मूर्खता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे क्रिश्चियंस का उदाहरण दे रहे हैं कि वे भी स्वीकार करते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान है वे परम पिता हैं। ओ फादर प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे पिता, हे परम पिता, कृपया हमें हमारा रोज का खाना दे दीजिए। तो इस प्रकार से वे प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो यह कॉमन सेंस है कि हमारा सबका पिता है, बिना पिता के कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान को सर्वात्मा कहा गया है। So, if you want freedom from this fearfulness or this material existence means struggle for it. This is material. Everybody is. I want to stay. In your country there has been so much fight, the French Revolution, and so many fighting between the Protestant and the Catholic. And Leo Napoleon Bonaparte, he also fought to fight. This is called struggle for existence. Everyone wants to exist, and he has to fight. At least you have to fight with the winter season. If there is no fighting, at least there must be fighting with the winter season or summer season. Without fighting, you cannot stay.
Without fighting, cannot stay. That is called struggle for existence and survival of the fittest. You must be fit. This is called material world. And spiritual world means there is no fight, simply friendship. This is spiritual. Vaikuntha. Vaikuntha, kuntha means anxiety. And Vaikuntha means without anxiety. जी। तो अगर हम जो है इस जो भय की स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि इस भौतिक जो अस्तित्व से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करना है? तो भौतिक अस्तित्व का अर्थ ही है जो है भय की स्थिति, या फिर जिसको प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवित रहने के लिए प्रयास करना, स्ट्रगल करना कि मैं रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे देशों में आपस में युद्ध होते रहते हैं। प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक्स हैं, उनके आपस में युद्ध होते रहते हैं। इस प्रकार से अनेक युद्ध होते रहते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, उन्होंने भी कई युद्ध किए। तो हर कोई जो है कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे हैं। इसको बोला गया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं भी है तो हमको कम से कम सर्दी से तो युद्ध करना ही पड़ता है, हमको कम से कम गर्मी से तो युद्ध करना ही पड़ता है। मतलब जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हम सोचते हैं कि कैसे इस गर्मी से अब बचा जाए, एसी लगा लेते हैं और बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, तो गर्मी से युद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार से सर्दी है बहुत सारी, तो सोचते हैं कि कैसे हम गर्म कपड़े अरेंज कर लें कि ठंड ना लगे, या अपने रूम के एनवायरनमेंट को गर्म रखें। तो इस प्रकार से हम युद्ध कर रहे हैं। कम से कम तो सर्दी के मौसम से या गर्मी के मौसम से तो युद्ध कर ही रहे हैं। बिना युद्ध किए हम इस संसार में, भौतिक संसार में नहीं रह सकते। तो इसी को कहा गया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो फिट होगा वही रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर कोई युद्ध नहीं है, वहां पर केवल दोस्ती है। यह आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठा, कुंठा का अर्थ है एंजाइटी, एंजाइटी चिंताएं, परेशानियां। लेकिन वैकुंठा, वैकुंठा मतलब विगत कुंठा, जहां पर परेशानी नहीं है, जहां पर चिंताएं नहीं है, वो जगह। So we have been put into this place of anxieties on account of our rebellious condition against God. That is the cause of our material. Krishna Priya Jeev Bhagavan Chaka. We should know this, that why we are put into this condition of struggle for existence, sorrow, fearfulness, anxiety. Why we are put into this condition? We don't want. This is human life. When this inquiry will come to a human being, then he is human being. Why? So long this why question does not come, isn't it? The animal does not question. So why I am put into this letter? Why I have been brought here to this letter? Anyway. Similarly, if the human being does not understand that I have been put into this material world for being slaughtered by the laws of material nature, never mind I am Napoleon or an ordinary man, I will be slaughtered. That which is called Mrityu-loka, the universe of being slaughtered. Nobody wants, just like the animal does not want to be slaughtered, but is by force it is slaughtered. Similarly, nobody wants death, but we are forced. Even such a big man like Napoleon, he wanted to complete that arch, but he was slaughtered because his desire was full. This is material. He must be slaughtered as soon as we can. Therefore, it is. तो हम इस चिंताओं से भरे हुए स्थान में क्यों डाल दिए गए हैं? क्योंकि हमने भगवान के जो खिलाफ बगावत कर दिया एक प्रकार से। तो यह इस भौतिक जगत का कारण है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब हम भगवान को भूल करके भोग करने की इच्छा किया, उसके कारण हमको इस संसार में आकर के गिरना पड़ा, जहां पर हमको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और हमेशा भय की स्थिति हमारे सामने बनी हुई है। लेकिन हम तो इसको नहीं चाहते हैं,
लेकिन फिर भी हमको मिल रही है। तो हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों मुझे जो है इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्यों मुझे मरना पड़ रहा है। इस प्रकार से ये जो क्यों है, ये केवल ह्यूमन बीइंग, केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। यदि हम क्यों इस प्रकार से प्रश्न नहीं करेंगे तो हम एक पशु के समान ही हैं। जैसे एक पशु ये प्रश्न नहीं कर सकता कि उसको कसाई खाने में क्यों ले जाया जा रहा है, क्यों उसको वहां पर जो है उसको काट दिया जा रहा है, वो उसके बारे में प्रश्न नहीं कर सकता, इसीलिए वो पशु है। और यदि मनुष्य भी कि मुझे इस मृत्यु लोक में जहां पर मुझे मरना पड़ेगा, मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, मुझे क्यों मरना पड़ेगा, इसके बारे में अगर प्रश्न नहीं करता है तो वो भी एक पशु के समान ही है। जैसे कि एक पशु को बलपूर्वक कसाई खाने में ले जाया जाता है और उसको मार दिया जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है कोई भी वो मरना नहीं चाहता, लेकिन वो फोर्स्ड, उसको मरना ही पड़ता है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा लीडर हो, नेपोलियन हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। इज फोर्स्ड टू डाई। सब हम सबको, कोई भी मरना नहीं चाहता लेकिन हमको मरना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ ये जबरदस्ती क्यों हो रही है, ये मनुष्य समझ सकता है। Said here that Ichchatam Apayam, anyone if he wants fearlessness, safe from being slaughtered, then he must do it. What is that? The Sarvatma Bhagavan Ishvara, the Supreme Lord, who is the origin of all living entities, Sarvatma. And he is Bhagavan. Bhagavan means all power, all opulence. He can be anything and everything. That is Bhagavan. Not that imitation rascal who claims that I am God, but he cannot do anything. Not that kind of Bhagavan. Bhagavan means all power. Whatever he lacks, he can. Sarvishadya Purna, full of 6 opulences. That is called Bhagavan. तो अगर कोई अभय जो है इस भय की स्थिति से मुक्त होना चाहता है, तो इस जो स्लोटर्ड, मरने से बचना चाहता है, तो उसको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वात्मा भगवान ईश्वरा, जो परम भगवान है, जो कि सभी जीवात्माओं के प्रारंभ हैं, आदि हैं, यानी सर्वात्मा है वो। और वो कौन है? वो भगवान है। भगवान मतलब जो पूर्ण ऐश्वर्यों से भग पूर्ण है। उनके वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इमिटेशन गॉड नहीं, नकली गॉड नहीं, मूर्ख नहीं कि जो बोले मैं भगवान हूं और कुछ कर नहीं सकता, ऐसा भगवान नहीं। भगवान मतलब जो पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण रूप से उसके पास षड ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से वो पूर्ण है, ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं। आगे और वर्णन किया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यस्तेव सरल इति भगवान। भगवान witness, everything has witness, nothing to be accepted blind. ऐश्वर्य, richness. The Bhagavan means who has got the complete riches. He is called Bhagavan. Now I have got some money, I have got some money, he has got some money, but nobody can claim that I have got all the money. No, that is not. So one who possesses all the money, that is Bhagavan. Similarly, money, strength, beauty, intelligence, knowledge, and vairagya, when you find out such a person, you can find out some very big rich man in this material world, but you cannot say that he is the supreme richest man. That is not possible. You will find another man richer than him. You will find another rich. In this way, if you are very scholar, researching, you research. When you come to a person where you see that nobody is richer than him, that is not. That is not. तो भगवान की परिभाषा दी गई है, हर चीज की परिभाषा दी गई है, कुछ भी हमको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐश्वर्यस्य, यानी जो ऐश्वर्य है, जो धन है, सबसे ज्यादा जिसके पास है वो भगवान है। तो हम सबके पास कुछ ना कुछ धन है, मेरे पास कुछ धन हो सकता है, आपके पास कुछ धन है,
लेकिन जिसके पास सारा धन है वो वास्तविकता में भगवान है। हाँ, इसी प्रकार से धन, बल और सुंदरता, बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य, जिसमें ये चार सारे के सारे 6 के 6 जो ऐश्वर्य हैं वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, वो भगवान है। आप इस संसार में किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो कि बहुत धनवान है, लेकिन देखेंगे उससे भी ज्यादा कोई धनवान है, उससे भी ज्यादा कोई धनवान है। हाँ, इसी प्रकार से कोई बहुत बुद्धिमान है, उससे भी ज्यादा कोई बुद्धिमान है, उससे भी ज्यादा कोई बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, जो सबसे ज्यादा जो है जिसके पास धन हो, और इस प्रकार से अन्य जो ऐश्वर्य बताए हैं। लेकिन जिसमें वो सबसे ज्यादा रूप में पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? वो भगवान होते हैं। So if you have got the energy to search out such person, then it is not difficult. The definition is there. Here there is competition. And not only Bhagavan, but Ishvara. Ishvara means control. Everyone is Ishvara. I also am controlling this institution. Or somebody is controlling his office, his factory, his kingdom. It's like President Nixon, he's controlling the United States. So all of us, more or less, we are Ishvara controlling. Everyone, just like this mother, she's controlling the small child. So she is also Ishvara. Because she's controlling. So anyone who has controlling power, so God has given everyone a little controlling power. In that sense, everyone of us is Ishvara. But here it is said, Bhagavan is Ishvara. The supreme control. Supreme controller means we are controller, but we are controlled by somebody else. But the Bhagavan Ishvara means he is no more controlled by anyone. That is Krishna. That is his God. Ishvara Parama Krishna. The supreme controller is Krishna. Satchidananda Devi. तो यहाँ पर केवल भगवान नहीं कहा है, बल्कि भगवान के साथ ईश्वर भी कहा है, भगवान ईश्वरा। तो ईश्वर का क्या अर्थ है? ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं इस संस्था को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो नियंत्रण कर रहा हूँ, तो मैं भी ईश्वर हूँ। इसी प्रकार से कोई अपने ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है, वो भी ईश्वर है। कोई अपनी फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, वो भी ईश्वर है। ये कोई माँ है अपने छोटे बच्चे को कंट्रोल कर रही है, वो भी ईश्वर है। तो इस प्रकार से हम सब जो हैं कहीं ना कहीं कम या ज्यादा ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक। हम किसी ना किसी को नियंत्रित कर रहे हैं तो हम ईश्वर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम नियंत्रण तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी किसी का नियंत्रण है। तो इसीलिए हम ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। यहाँ पर कहा गया है भगवान ईश्वरा, यानी परम ईश्वर की बात की गई है। तो हम परम ईश्वर जो है वो सबको कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रित करता है, लेकिन उसको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए जो भगवान ईश्वर है, इसका मतलब है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। और इसका वर्णन भी किया गया है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कृष्ण है। Ishvara and Hari. Hari means if you surrender to such Ishvara, such, you are being controlled. Foolishly you are thinking I am free. How you can be free? The biggest personality in this country, Napoleon Bonaparte, he was not free. And how you can be free? This is misconception. Nobody can be free. Everyone is controlled. But we are remain. No, I don't want to be controlled. But you will be controlled. Just like in a state, if you don't want to be controlled by the state law, the state will force you into the prison house to be controlled. This is your position. You cannot be free. This is not. And therefore, freedom is not good for us. Just like a small child. If the child is given freedom, it will simply create havoc. So it is not to be given freedom, must be controlled. Similarly, तो ईश्वरा और उसके साथ है हरि। तो हम
मूर्खता पूर्ण होकर के सोच सकते हैं कि मैं तो मुक्त हूँ। हाँ, लेकिन हम कैसे मुक्त हो सकते हैं जब इस देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट, जब वो फ्री नहीं है, जब वो भी कंट्रोल किया जा रहा है किसी के द्वारा, हर कोई कंट्रोल किया जा रहा है, तो कैसे कोई जो है वो मुक्त हो सकता है। लेकिन हम जो है विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कंट्रोल नहीं होना चाहता, लेकिन हम फोर्सफुली, बलपूर्वक हमको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये हमारी स्थिति है, और ये बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटे बच्चे को यदि हम मुक्त छोड़ देंगे तो वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा लेगा, कुछ ना कुछ गलत कर देगा। तो इसीलिए जो है उसको फ्रीडम नहीं देना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसी प्रकार से हमको भी फ्रीडम नहीं दिया गया है, हमको भी कंट्रोल करके रखा गया है। जैसे कि स्टेट के कानून बनाए गए हैं कुछ, तो अगर कोई स्टेट के कानूनों को नहीं मानता तो उसको फिर जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसको कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो यदि हम स्वेच्छा से भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं तो फिर हमको भी इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। All living entities, being child of God, we must voluntarily put ourselves to be controlled by God. That is perfection. Don't try to be falsely free. That is not possible. That's the moral. You'll never give freedom to the child, because that is not good for him. It should not be. Anyone who is weak, he must not be given freedom. And that is good for him. Similarly, we are weak. God is great. God is all powerful. We are very tiny. We have no power. Therefore, our normal life is voluntarily accept the controlling power of God. That is human. And God comes and He pleads, He requests, my dear boy, why you are struggling here? You will never be happy. Sangadharman Parityajya Mami Kamsa. We have manufactured so many plans to be happy, but you will never be. For your only business is that you come under my control. Aham tva sarvapapi bhava paisami mati. I give you all happiness. This is the seventh substance of Bhagavad Gita. And anyone who agrees to be controlled, then success of life begins from that point. When he agrees. Unfortunately, at the present moment, the whole world population has been taught in such a way that they do not want to be controlled. Therefore, there is always chaotic condition. तो क्योंकि हम जो हैं सारे जो जीव हैं वो भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए हमको स्वेच्छा से भगवान का जो कंट्रोल है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे जीवन की पूर्णता होगी। हमको जो है गलती से जो है मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने छोटे बच्चे को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देगी, क्योंकि यह उसके लिए अच्छा नहीं है। जो भी कमजोर है उसको कंट्रोल करना ही चाहिए, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो भगवान महान है और हम बहुत कमजोर हैं, इसीलिए हमको भगवान के जो कंट्रोलिंग पावर है, इस नियंत्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, और यही मनुष्य जीवन है। इसीलिए भगवान जो है वो स्वयं आते हैं, स्वयं घोषणा करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे, तुम क्यों यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हो? तुम ऐसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। क्या करो, तुमने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं खुश होने के लिए, लेकिन उनसे तुम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा एकमात्र कार्य है मेरे नियंत्रण को स्वीकार करना, और जब तुम मेरे नियंत्रण को स्वीकार कर लोगे तो तुम खुश हो जाओगे। मैं तुम्हें सारी खुशी दे दूंगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो है भगवद गीता का सार है। तो जो भी भगवान के द्वारा कंट्रोल होने के लिए एग्री करता है, तब उसके जीवन में जो सक्सेस है वो आने शुरू हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी पूरे विश्व में ये सिखाया जा रहा है कि हम कैसे नियंत्रक बन जाएं, कैसे हम किसी से नियंत्रित ना हो, और इसी कारण से पूरा जो समाज है उसमें chaotic कंडीशन चल रही है, सब गड़बड़ चल रहा है। Here is the solution. That if you want to be saved from this chaotic condition of life,
If you want to be free from all anxiety, then your business is the Srutavya. You hear about the Supreme Controller, Krishna. And for hearing about the Supreme Controller, we have got 80 books left. Not 1, 2, 3, 4. 80 books. So if you are actually intelligent, if you are actually scientist, if you are actually philosopher, read this book that is called Srutavya. Hear about the Supreme Controller. Not that simply God is there. Just try to understand how God is there. That is fine in this. There is no other reason. Throughout the whole world. You find truth of it. Key to Tamas, not only hearing, like duck. As soon as hear, if you are, then you spread this knowledge. Keep it up. My dear child, there is God. God is like this. I have heard from the authority. That is called Kirtitam, preaching. First of all, hearing, without hearing how you preach. So, this is called Savanam Kirtanam. Srutavya, Kirtitavyaschya, and Smartavya. As soon as you become expert, here, an expert, I'm a chanter, then you will remember always Smartavya. And as soon as you always remember Krishna, there is no more here. Finished. That is it. Thank you. तो यहाँ पर समाधान दिया गया है कि हम कैसे इस जो भय वाली स्थिति है, ये जो पूरी बेकार स्थिति है इस जीवन की, भौतिक जगत की, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या है, श्रोतव्य, सुनना चाहिए भगवान के बारे में, जो कि परम नियंत्रक हैं, परम नियंता हैं भगवान कृष्ण, उनके बारे में सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसीलिए हमारे पास 80 बुक्स हैं, हमने 80 किताबें छापी हैं, 80 ग्रंथ छापे हैं, 1 2 3 4 नहीं, 80, जिसमें कि भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा भगवान के बारे में जान सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। ये भी श्रवणम है। तो यदि आप वास्तविकता में समझदार हैं, या वास्तविकता में आप वैज्ञानिक हैं, वास्तविकता में आप दार्शनिक हैं, तो आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इसको श्रोतव्य कहते हैं। ये नहीं केवल कि भगवान महान है, नहीं, ये जानना चाहिए कि भगवान क्यों महान है, कैसे महान है, कितने महान है, ये हमको समझना चाहिए। और जो है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, केवल सुनना नहीं है, बस मूर्ख की तरह बैठ के बस सुन रहे, नहीं, सुनना नहीं है, साथ में क्या करना है, केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ इस ज्ञान को आगे बताना भी है, उसको प्रचार भी करना है, जिसको बोलते हैं कीर्तितव्यश्च, उसको बोलना भी है। और जब हमने उसको भगवान या भगवान के जैसे ही जो अथॉरिटीज हैं, जो भगवान के द्वारा डिसाइडेड हैं, जो परंपरा में आ रहे हैं गुरु आचार्य लोग, उनसे हमको सुनना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, भगवान किस प्रकार से हैं, और फिर उसको प्रीचिंग, उसको दूसरों को बताना चाहिए, कीर्तितव्यश्च। तो कैसे हम प्रीचिंग करेंगे अगर हम सुनेंगे ही नहीं, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं कर सकते। और फिर है स्मर्तव्य, जब हम अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से बोलेंगे, जब एक्सपर्ट हियरर और एक्सपर्ट जो चैंटर है हम बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा, फिर स्मर्तव्य, फिर हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, और फिर कोई भय नहीं रहेगा, फिर हम भय से मुक्त हो जाएंगे, और यही जीवन है। धन्यवाद। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। तो ये था प्रभुपाद जी का लेक्चर। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को चर्चा किया है, और हमने भी उसको साथ में चर्चा करने का प्रयास किया है। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।